بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آج ہم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ نالج شیئر کر رہے ہیں، جو آج کے ڈیز میں یہ بہت زیادہ کامنلی کوشچن کیا جا رہا ہے کلائنٹس کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، اور کنفیوژن ایک بہت زیادہ ہے، کیا ہمیں فائلر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ یعنی ہم فائلر بنیں تو ہم فائلر کیوں بنیں، ہمیں فائلر بننے میں کیا فائدہ ہے اور نان فائلر رہنے میں کیا نقصان ہے؟ ڈیفینیٹ سی بات، ہر انسان ہر ڈیسیژن کے ساتھ لوجیکل کمپیریزنس کر رہا ہوتا ہے، اس نے کوئی پروس اینڈ کونس کو دیکھنا ہوتا ہے، بینیفٹس اور ڈس ایڈوانٹیجز کا کمپیریزن کرنا ہوتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے ہم نے چھوٹی سی تو نہیں، لانگ ٹاپک کو ایز منیمم پاسبل ٹائم کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ The point is کہ فرسٹ آف آل کہ فائلر کیا ہوتا ہے؟ فائلر از دا پرسن جو کہ ایف بی آر کے ساتھ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کراتا ہے اور ہر سال اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے، اس کو ہم فائلر کہتے ہیں۔ اور جو ایف بی آر میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور ہر سال اپنے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہا ہے، اس کو ہم نان فائلر کہتے ہیں۔ اور اس کو ہر سال رینیو کرانا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار آپ فائلر بن جائیں تو لائف ٹائم کے لیے بن جاتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ فائلر بنتے ہیں مینز آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا ایف بی آر کے ساتھ اور آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروا دی، اپڈیٹ کروا دی، لیکن اس کو پھر آپ نے ہر سال جو ہے اپنا ٹیکس ریٹرن نہیں، جب نیا مالی سال آتا ہے 30 جون کے بعد، 1 جولائی سے نیکسٹ، اس طرح ابھی یہ 2023 کے اندر ہم ہیں اور جولائی 2023 میں 2023 کی ٹیکس ریٹرن سبمٹ ہو رہی ہیں۔ تو فائلر از اے پرسن جو کہ اپنی ٹیکس ریٹرن ریگولرلی فائل کرتا ہے۔ اب پوائنٹ یہ کہ ہمیں فائلر بننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ فرسٹ آف آل یہ ہماری ایک نیشنل اوبلیگیشن ہے، ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم فائلر بنیں اور ایف بی آر کو اپنی انکم اور ایسٹس کے بارے میں بتائیں۔ آج ہمارا ملک جس جگہ پہ ہے، جو مسائل ہیں اس پہ ہم ڈیبیٹ میں نہیں جاتے، اور وہ ایوری ون نوز کہ کیا ایشوز ہیں اور اس کا رسپانسبل بھی کون ہے، لیکن انڈیویجولی ہم اگر اس حوالے سے دیکھیں تو ہر بندہ ہمارے میں سے رسپانسبل ہے اگر ہم اپنے ٹیکس ریٹرنز کو سبمٹ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو فائلر نہیں ڈکلیئر کرتے ہیں، اپنی انکم کو اور اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں۔ اور فائلر بننے کے اوپر آپ کے اوپر کو انڈیو ٹیکسز نہیں لگتے ہیں، بلکہ جو اس ٹائم گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نان فائلر ہوں۔ یہ ہمارے ملک کے اندر یہ پریویلیج ہے، یہ ایک آپ کو فیسلٹی ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی کماتے جائیں اور پھر بھی نان فائلر رہیں، اور لیکن اب وہ پریویلیجز اور جو فیسلٹیز تھیں وہ آلموسٹ آہستہ آہستہ گورنمنٹ جو ہے جو سسٹم ہمارے کمپیوٹرائز ہوتے جا رہے ہیں، اب آئی ٹی کارڈ کے تھرو، ناظرہ کے جب سے آئی ٹی کارڈ بن رہے ہیں، ہر چیز جو لنکڈ ہوتی جا رہی ہے، تو جو بندہ اب کرنٹلی جو صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ نان فائلر ہے اس کو زیادہ نقصان ہے ایز کمپیئر ٹو فائلر۔ تو ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ریسنٹلی انہوں نے چیز کی ہے اس بجٹ کے اندر کہ نان فائلر کے لیے بینک سے کیش وڈرا کے اوپر ہر 1 لاکھ روپے کے اوپر 600 روپیہ ٹیکس کٹے گا، جو کہ بہت ایک ہیوی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ اس سے اگر آپ نے 10 لاکھ روپیہ نکالا تو آپ کے پاس 6,000 روپیہ اسی ٹائم کٹ جائے گا۔ اور لوگ ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، حکومت ہماری غریب ہے لیکن عوام ہماری غریب بھی ہے لیکن امیر بھی بہت ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے بینکس میں رکھے ہوئے ہیں، اور جب اچانک آل آف اے سڈن وہ بینک میں جاتے ہیں، چیک کاٹتے ہیں، اپنے ہی پیسے نکالتے ہیں، تو بینک کہتا ہے جی آپ کو 1 لاکھ روپے کے ساتھ 600 روپیہ تو ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب اس ٹائم کوئی چوائس نہیں ہوتی، آئدر اس کے آپ اس کو ویٹ کریں ٹرانزیکشن کو، اور بعض ٹرانزیکشن آپ کی ارجنٹ نیڈز ہوتی ہیں، آپ کو کیش وڈرا کرانا ہوتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے بہت پرابلم بن جاتی ہے، کیونکہ فائلر بننے کا پروسیس تو بہت سمپل ہے۔ وہ آپ کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ رابطہ کریں، ہم بھی اس کو فوراً سیم ڈے میں آپ کو فائل کر دیتے ہیں، بلکہ اگر ارجنٹ کیس ہو تو 2 سے 3 آورس کے اندر ہم آپ کو فائلر سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتے ہیں۔ اور آپ فائلر بننا چاہو تو میرا نمبر نیچے آ رہا ہے، اس پہ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیٹیلز دیں گے تو آپ کو ہم ود ان 3 آورس فائلر کر دیں گے۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو پتہ چل گیا اور آپ کسی ٹھیک کنسلٹنٹ سے رابطے میں بھی آ گئے اور آپ نے اسی ٹائم اپنا فائل کروا بھی دیا، بٹ اسٹل بینک کے ریکارڈ کے اندر اس کو اپ ڈیٹ ہونے میں 1 ویک تک لگ سکتا ہے۔
वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने पैसे निकलवाने हैं, पैसे पड़े हुए हैं, बैंक वालों ने कह दिया आप फाइलर बन जाए, आपने समहाउ फाइलर बनने का प्रोसेस भी कंप्लीट करवा लिया, चाहे खुद कर लिया या किसी कंसल्टेंट के थ्रू आपने करवा लिया, लेकिन फिर भी आपको एक हफ्ता लगेगा बैंक के रिकॉर्ड के अंदर इसको अपडेट होने में। तो ऐसा मामला फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आएगा, आपने कोई हैवी अमाउंट विड्रॉ करनी है, तो इसलिए अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को फाइनल करवा लें। अब अगर हम इस कंपैरिजन में है कि फायदा है या नुकसान है, अब बात उससे आगे चली गई है। अब पाकिस्तान में अगर जो बंदा को बिजनेस करना चाह रहा है, कोई डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है, और मैं इसके बाद आगे हम जाके सारी ट्रांजैक्शंस को वन पे वन डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन जो लोग कंसर्न हैं, जो रेलेवेंट हैं, उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको पता भी नहीं होगा, और अचानक आप जो है और 10 मिनट आप इस वीडियो को अगर दे देंगे तो अपने आप हजारों रुपए अपने सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये जो हम बात कर रहे हैं कि बैंक से 1 लाख रुपए निकालेंगे तो 600 रुपए टैक्स कटेगा, और अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट होने में इसको 1 वीक लगेगा, और बाज़ औक़ात ये 1 वीक का वेट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता और काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो बाकी इसमें एक लंबी तफसील है, उसको हम फिर बाद में भी ज़्यादा वीडियोस में भी एक आइटम वाइज सेपरेट भी एक्सप्लेन करें, लेकिन अभी मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनके अंदर कितना डिफरेंस है फाइलर और नॉन फाइलर के अंदर। तो बैंक्स का आ गया। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी बाय करते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, तो फाइलर के ऊपर जो परचेजिंग कर रहा है उसके ऊपर 3% टैक्स लगेगा, और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर जो है प्रॉपर्टी परचेज करते हुए, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को जरा मैं फिर रिपीट करूंगा कि गौर से सुनिएगा, नॉन फाइलर की जिंदगी जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर अब बहुत मुश्किल हो गई है। नॉन फाइलर ने प्रॉपर्टी परचेज करते हुए ऑलमोस्ट 11% जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हम एज्यूम करें कि एक प्रॉपर्टी है उसकी मालियत 1 करोड़ रुपए है, वो प्लॉट भी हो सकता है, वो घर भी हो सकता है, वो फ्लैट भी हो सकता है, हम अगर हम एवरेज एज्यूम करें कि उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो आपको उसके ऊपर 10 लाख, 11 लाख, इवन बाद केसेस में 12 लाख अगर 7E भी अप्लाई हो जाता है, जो एक लेटेस्ट क्लॉज इन्होंने इम्प्लीमेंट की है, लेकिन वो बहुत कम लोगों पे अप्लाई होती है, वो एलीट क्लास पे अप्लाई होती है जिनकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसेट्स हैं, उस पर हम डिटेल नहीं जा रहे, लेकिन 11% ऑलमोस्ट आपको पे करना पड़ेगा, जो 1 करोड़ के साथ 11 लाख रुपए बहुत हैवी अमाउंट हो जाती है। तो नॉन फाइलर को सबसे बड़ा नुकसान जो है वो प्रॉपर्टी की परचेज करने पे। इसी तरह जब प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं तो फाइलर के ऊपर 3% टैक्स है, और नॉन फाइलर के ऊपर 6% है। वो कंपैरेटिवली उसमें लोड उन्होंने सेलर पे कम डाला, लेकिन प्रॉपर्टी परचेज करते हुए, और ये थोड़ी सी गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजी भी नजर आ रही है, गवर्नमेंट आप प्रॉपर्टी की परचेजिंग को डिस्करेज कर रही है और प्रॉपर्टी की सेलिंग को इनकरेज कर रहे हैं। यानी प्रॉपर्टी बाय करेंगे, नॉन फाइलर की बात कर लें, नॉन फाइलर प्रॉपर्टी बाय करेगा तो उसको 11% देना पड़ेगा, और नॉन फाइलर जो प्रॉपर्टी सेल करेगा तो उसको 6% देना पड़ेगा। तो इससे भी अंदाजा हो रहे स्ट्रेटेजी का, स्ट्रेटेजी है कि आप परचेजिंग को डिस्करेज करें और सेलिंग को इनकरेज करें। उसके बाद अगर आपने बैंक्स में कुछ सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रखे हुए हैं, चाहे वो इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन है या नॉन इंटरेस्ट बेस्ड इस्लामिक बैंकिंग में, किसी भी जगह जहाँ पे आप बैंक में आपने डिपॉजिट है और आपको उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है, डेफिनेटली हर इनकम के ऊपर टैक्स होता है। तो आपको जब प्रॉफिट आ रहा है तो आप इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उसके ऊपर नॉन फाइलर जो है वो 30% पे करता है, और जो फाइलर है वो 15% पे करता है। क्या हम इसे करें, रेट्स में थोड़ा बहुत माइट भी कंफ्यूजन हो सकती है, बट द पॉइंट इज कि फाइलर और नॉन फाइलर में एक ह्यूज डिफरेंस है, ऑलमोस्ट आधो-आध का फर्क है, बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा है। जहाँ प्रॉपर्टी परचेज करने में आधो-आध से भी काम बहुत ज्यादा आगे चला जाता है। उसके अलावा आप किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके ऊपर आपको पेमेंट चेक के थ्रू आती है और विदाउटिंग टैक्स काटते हैं, तो उसके भी डिफरेंट कैटेगरीज में रेशियो जो है वो फाइलर के 3% और नॉन फाइलर के 6%, और बाज केसेस में 7% और 14% है। इसी तरह आप कोई रेंटल इनकम आपको आ रही है, और ऑर्गेनाइजेशन को जो है आपका घर यानी आपने को रेंट आउट किया हुआ है, और जो रेंट आपको पे कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वो चेक जब काटेंगे तो आपको रिजल्टेंट टैक्स वहीं से कट जाएगा। उसकी भी रेशो में फाइलर के लिए 5% है और नॉन फाइलर के लिए वो 15% है। इसी तरह प्राइस बॉन्ड्स आपके पास है, प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर भी जो टैक्स का रेट है वो 15% है,
फॉर फाइलर और 30% है फॉर नॉन फाइलर। जब आप गाड़ी परचेज करते हैं, नई गाड़ी चाहे आप कैश पे लेते हैं चाहे आप लीज पर लेते हैं, तब भी फाइलर और नॉन फाइलर में वो एक डिफरेंट कैपेसिटी के मुताबिक डिफरेंट स्लैब्स हैं इंजन कैपेसिटी के मुताबिक, लेकिन वो भी डिफरेंस है। इसी तरह अगर आप व्हीकल का टोकन टैक्स, गाड़ियों का जो सालाना टोकन टैक्स, जो हर एक ने गाड़ी एक जरूरत की चीज है, हर घर की जरूरत है, माशाल्लाह बाज़ घरों में तो 4 गाड़ी खड़ी होती हैं, तो जब ये गाड़ी का टोकन टैक्स पे करने जाएंगे तो उसमें भी 2 कैटेगरीज, वो आपसे पूछते हैं आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर है। फाइलर का रेट और है और पूछने की जरूरत नहीं, सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, और उसमें भी 50% का डिफरेंस है, वो भी गाड़ी के इंजन कैपेसिटी के मुताबिक डिफर कर रहा होता है। लेकिन अगर फाइलर जो है वो 1000 रुपीज पे करेगा टोकन टैक्स, तो नॉन फाइलर जो है वो 2000 रुपया पे करेगा। इसी तरह रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिफरेंट किस्म की जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें फाइलर नॉन फाइलर पे रेट का डिफरेंस। इसी तरह ऑप्शन में आप कोई चीज लेते हैं तो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है उसकी भी रेशियो फाइलर और नॉन फाइलर की रेट डिफरेंट है, 5% और 10% है। बोनस शेयर इशू होते हैं और इस तरह और बहुत सी लंबी लिस्ट है। तो पॉइंट इज इवन आपने नया को कमर्शियल मीटर लगवाना है तो उसके ऊपर भी आप तो अलाउड ही नहीं है, एनटीएन आपका मस्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर भी एक और प्रोविजन है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अगर आपका डोमेस्टिक बिल भी अगर उसकी वैल्यू 25,000 25,000 से ऊपर चली जाती है तो नॉन फाइलर के लिए, अगर आपका इनसे दो कंडीशन है कि अगर आपका बिल 25,000 से ऊपर है और आप नॉन फाइलर हैं तो आपके ऊपर एडिशनल इनकम टैक्स 7.5% अप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम सम अप करें, इतने सारे डाटा याद रखने की ना जरूरत है आपको, जो टेक्निकल फिगर्स हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि आपके लिए अब फाइलर बनना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। नॉन फाइलर है कि आप डे टू डे लाइफ के ट्रांस सिर्फ वो कर सकता है जिसका कोई दुनिया से वास्ता नहीं है, जिसने कोई बैंक अकाउंट खोला हुआ है, ना गाड़ी रखी हुई है, यानी कम से कम अपने नाम पे नहीं रखी हुई, और इस नाम मतलब वो कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं कर, वो तो नॉन फाइलर रह सकता है। अदरवाइज अब नॉन फाइलर रहना प्रैक्टिकल नहीं है। तो गैस होपफुली आपको इस इंफॉर्मेशन को फायदा हुआ होगा सुन के। तो पॉइंट है इसके अपने आप को लाजमन फाइलर बनाएं, और बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड की हैं कि आप इसको खुद भी करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। फाइलर स्टेटस अपना एक्टिव करा सकते हैं, बीआर की वेबसाइट पे जाएं, वहां से अपना एनटीएन बनाएं और उसकी कोई फीस नहीं है। टैक्स रिटर्न अपनी सबमिट करें, और अगर आपने इमीडिएटली फाइल बनाना, सिर्फ 1000 रुपया गवर्नमेंट का चालान है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो आपका फाइलर स्टेटस एक्टिव हो जाए। खुद करना चाहते हैं खुद कर लें, हमारे पास प्रोफेशनल टीम है जो हम इमीडिएटली विद इन 3 आवर्स सर्विस देते हैं। अगर आप फाइलर बनना चाहो 3 घंटों के अंदर, ओनली 3 आवर्स के अंदर, बहुत ही नॉमिनल पैसों के अंदर हम आपको फाइलर स्टेटस आपका एक्टिव कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो इट्स वेरी गुड, और चूंकि इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव चैनल, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, डेफिनेटली आप देखेगा उसकी नॉलेज में इजाफा होगा और उसको फायदा होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो वो ऑटोमेटिकली वो आपके पास अपडेट होती रहे। थैंक